سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ سارے دوست حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ جو دوست آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، گزارش ہے کہ ایک بار پھر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق دور و نزدیک سے تشریف لانے والے میرے آقا کے پیارے غلاموں، ہمیشہ کی طرح اس سال بھی بڑی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم حاجی علاویہ صاحب، محترم بھائی محمد افضل صاحب، بھائی محمد اکرم صاحب، بھائی محمد لدن شاہین اور جتنے بھی احباب تشریف فرمائے، یہ شہر قبولہ کے ایک منفرد مجمع ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محبت والے چھپ کے زیادہ بیٹھتے ہیں، لیکن خطیب کی نظر سے آپ چھپ نہیں سکتے۔ اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ گرامی قدر حضرات، اس محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں جن کا ذکر اس کائنات میں اس وقت بھی جاری و ساری تھا جب نہ ابھی زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، جب اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا۔ ایک خدا تھا، اب دوسرا ذکر مصطفیٰ، اور ایک وقت پلٹ کے پھر اس کائنات پر آئے گا جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، جتنی بھی مخلوق ہے فنا ہو جائے گی اور اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یعنی اس کائنات پہ یہ وقت آئے گا کہ جس دن اللہ اللہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس دن بھی مدینے والے کا ذکر ہو رہا۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرنے والا ہی کوئی نہیں تو حضور کا ذکر کون کرے گا؟ یاد رکھیے، خدا کا ذکر کرتی ہے اس کی مخلوق، اور قیامت کے دن ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ مصطفیٰ کا ذکر خدا کر رہا ہے، نہ خدا کی ذات کو فنا ہے، نہ ذکر محمد کو فنا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی حضرت علامہ محمد عمر فریدی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حرمت قرآن پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں آقا کے میلاد سے حضور کی سیرت تک کا سفر وقت کے اندر طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ دنیا کی سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں،
کہ ذکر مصطفیٰ گھٹا دے، گھٹا کوئی نہیں سکتا۔ ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے کہ ذکر مصطفیٰ بڑھا دے، بڑھا کوئی نہیں سکتا۔ جو کسی کے گھٹانے سے گھٹتا نہیں اور بندوں کے بڑھانے سے وہ ذکر بڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ جس کا ذکر خدا بلند کرے کوئی اس ذکر کو گھٹا ہی کبھی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ تحقیق۔ حضور کی ذات وہ ذات ہے جن کا ذکر ہر لمحہ ہر گھڑی کائنات میں جاری و ساری ہے۔ جبریل امی آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ فرمایا جبریل کتنا بلند کیا ہے؟ فرمایا محبوب اتنا بلند کیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، میرے محبوب اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا اے میرے حبیب وہاں وہاں تیرا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ نہ خدا کے ذکر کی حد ہے نہ مصطفیٰ کے ذکر کی کوئی حد ہے۔ اور ہم اس لیے بھی حضور کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے جسے ہر وقت میرا خدا اپنی نظر میں رکھتا۔ واحد چہرہ میرے حضور کا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، پوچھا گیا کہ آپ صحابی رسول ہیں اور دین کی سر بلندی کے لیے میدان جنگ میں بڑے بہادری کے جوہر آپ نے دکھائے ہیں، آپ بتائیے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان الرسول علی قدر المرسل، دیکھنا چاہو کہ مصطفیٰ کا رتبہ کیا ہے، بس اتنا دیکھ لو کہ بھیجنے والا جتنا بلند ہے جس کو بھیجا ہے وہ محمد کتنا بلند ہوگا۔ حضور کی ذات گرامی قدر وہ ذات ہے، میں عرض کر رہا ہوں جسے ہر وقت خدا اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ یہ جملہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ میرے میلاد کے موضوع سے اس کی مطابقت بڑی۔ آقا کی ذات وہ ذات ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے محبوب تیرا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ میں رب ہر وقت تیرے چہرے کو، تیری ذات کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں۔ یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی ذات خدا کی نگاہوں سے دور ہو جائے۔ ہر وقت خدا جسے اپنی نظر میں رکھے وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اور مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر وقت امت کو اپنی نظر میں رکھتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے اہل محبت آئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روضہ انور میں آج بھی میرے حضور کی 6 مصروفیات ہیں، آج بھی 6 مصروفیات مبارکہ ہیں روضہ انور میں میرے آقا کی۔ یہ ان کی رسائی جہاں تک کہ انہوں نے بیان کر دیا، ورنہ آقا کی مصروفیات مبارکہ کی حد کوئی نہیں۔ یہ جہاں تک ان کی نظر پہنچی ہے انہوں نے بتایا ہے، اور یہ کوئی چھوٹے لیول کا بندہ نہیں۔ جو حدیث کے فن پہ کتاب لکھے تو اپنے دور کا بہترین محدث بنے، جو تفسیر کے فن پہ لکھے تو بہترین مفسر قرآن ہو، جو سیرت النبی پر قلم اٹھائے تو بہترین سیرت نگار ہو، جو اسلام کی تاریخ لکھے تو بہترین مورخ اسلام ہو۔ اور حضوری کی کیفیت یہ ہے کم از کم 72 مرتبہ جسے جاگتے ہوئے محمد کا جلوہ نصیب ہوا ہے، 72 بار میرے حضور کا جلوہ دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کی 6 مصروفیات ہیں آج بھی روضہ انور میں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو میری اور آپ کے اس عنوان سے بڑا متعلق ہے اور بڑی مطابقت رکھتی ہے، وہ یہ ہے النظر الی اعمال امتی۔ حضور اپنی امت کے اعمال پر آج بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں خوبصورت محفل سجی ہے، کسی کی ڈیوٹی دریاں بچھانے پہ لگی ہوگی، کسی کی ڈیوٹی اس پنڈال کی صفائی پہ لگی ہوگی، کسی کی ڈیوٹی شامیانے لگانے پہ لگی ہوگی،
किसी की ड्यूटी आका के गुलामों को दावत देने पे लगी होगी, किसी की ड्यूटी हुजूर के मिलाद की खुशी में लंगर पकाने पे लगी होगी। बंदा सोचता है कि मैं दरिया बिछाऊं, मिलेगा क्या? मैं झाड़ू लगाऊं, मिलेगा क्या? मैं लोगों को दावत दूं, मिलेगा क्या? ये बात ज़हन में रखना, कुछ और मिले ना मिले, ये इज्जत क्या कम है कि तू दरिया बिछाए और मदीने वाला तुझे देख ले। अन्नज़रु इला आमाल उम्मतिही, ये करम क्या कम है कि आप हुजूर के मिलाद की महफिल में नौकरी करें और आका की नजर तेरे ऊपर पड़ जाए, तुझे और क्या चाहिए? जिसे हर वक्त खुदा अपनी नजर में रखता है, वो मुस्तफा हम गुनाहगारों को अपनी नजर में रखते हैं। इसी मकाम पर आका की अजमत की एक बात करना चाहूंगा कि हर एक का कोई ना कोई किबला है। या अल्लाह, कोई तेरा भी किबला है? लफ्ज़ किबला के दो मफहूम है। एक है शरई मफहूम, वो सिमत जिसकी जानिब चेहरा करके अल्लाह को सजदा किया जाए उसे किबला कहते हैं। ये मफहूम और ये मज़मून मेरी गुफ्तगू के साथ मुताबिकत और इसके अंदाज में लफ्ज़ किबला मैं नहीं समझा रहा। एक है लफ्ज़ किबला का लुग़वी, ज़ाती और लफ्ज़ी मतलब है। हर वो ज़ात जो मरकज़े तवज्जो हो उसे भी किबला कहते हैं। मैं देख रहा हूँ अल्लामा उमर फरीदी साहब को, मैं कह सकता हूँ किबला, आप कैसे हैं? मैं देख रहा हूँ अफजल भाई को, मैं कह सकता हूँ किबला, आप कैसे हैं? मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, मैं कह सकता हूँ किबला, आप कैसे हैं? तो याद रखिए, यहाँ मतलब होगा वो ज़ात जो मरकज़े तवज्जो हो उसे किबला कहा जाता है। इस मफहूम को ज़हन में रखना है। हर एक का कोई ना कोई किबला है। या अल्लाह, कोई तेरा भी किबला है? फरमाया हाँ, किसी का किबला बैतुल मुक़द्दस, किसी का किबला खाना काबा, खुदा का किबला चेहरा मुस्तफा है। खुदा का किबला चेहरा मुस्तफा है, क्योंकि जिसे हर वक्त अल्लाह अपनी निगाह में रखे वो मरकज़े तवज्जो चेहरा मेरे मोहम्मद अरबी का चेहरा है। और आज़म चिश्ती ने कहा था कि दुनिया ते महबूब हजारा, हर कोई अपना मन पर चावे, हर एक का मरकज़े तवज्जो कोई ना कोई है। लेकिन आज़म चिश्ती लिखते हैं कि दुनिया ते महबूब हजारा ते हर कोई अपना मन पर चावे, किसी दा किबला केच नगर वाल ते कोई हीर दा जाग सदावे, किसी दा काबा दर शीरींदा कोई लैला दे गुण गावे। आज़म साडा किबला उठे जिथे काबा सीस निभावे। अल्लाह या रसूल अल्लाह या वासिअत या अली जिंदाबाद। मैं उस महबूब की बात कर रहा हूं कि फतेह मक्का है, आज हिजरी है, मक्का शरीफ का माहौल है। बड़े बड़े सरदार आज मेरे हुजूर के कदमों में हाथ बांध के सर झुका के बैठे हैं। दीने मोहम्मदी की खैरात मिल चुकी है, अजान का वक्त आता है। इसी बात के ऊपर मैं ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, अजान का वक्त आया। साहिब तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह ने 9वीं जिल्द के अंदर जो ज़ियाउल कुरान से छपी है, ये मजमून लिखा कि आका अजान के लिए बुलाने ही वाले थे कि सहाबा पहले सोच में पड़ गए। किसी ने कहा आज अजान के लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर का इंतखाब किया जाएगा। किसी ने कहा नहीं, जिन्हें मेरे नबी ने अल्लाह से दुआओं में मांगा है वो मुराद मुस्तफा फारूक आजम है, आज उनको बुलाया जाएगा। किसी ने कहा नहीं, बड़ी खिदमतें हैं हजरत उस्मान गनी की, आज उन्हें कहा जाएगा कि उस्मान गनी तुम अजान पढ़ो। किसी ने कहा नहीं, जिसके निकाह में मेरे रसूल की जन्नती औरतों की सरदार बेटी आई, आज उस अली को कहा जाएगा अली तू अजान पढ़। सहाबा सोच में पड़े हैं, फिर निगाह रहमत उठती है। फरमाया ऐना बिलाली, मेरा बिलाल कहाँ है? या रसूल अल्लाह, मैं खातिम बिलाल हाजिर।
काबे की छत पे चढ़कर आज अजान पढ़। दीन इज्जतें क्या देता है। हजरत बिलाल कुरैशी नहीं है, हाशमी नहीं है, मक्का के सरदार घराने से ताल्लुक नहीं है, खुद गुलाम इब्ने गुलाम दिखते दिखाते चौखट तक पहुंचे थे। आज इज्जतें मिल गई और मैं बिलाल काबे की छत पे चढ़ के आज हमें अजान सुना। सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते में 50-60 साल की उम्र मेरी हो चुकी थी। मैं रस्सियां पकड़ के काबे की छत पे चढ़ा, बैठा थका, थोड़ा सा सस्ताया, फिर उठ के खड़ा हो गया। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैंने मदीना में अज़ानें पढ़ी, मुकाबे की तरफ, बदर में अज़ानें पढ़ी, मुकाबे की तरफ, उहुद में अज़ानें पढ़ी, मुकाबे की तरफ, मैंने सफर में अज़ानें पढ़ी, मुकाबे की तरफ। आका जब भी अज़ान पढ़ी है मुकाबे की तरफ, आज काबा मेरे कदमों में आ गया है, किस जानब चेहरा करके अब अज़ान पढ़ी जाए। मेरे नबी की निगाह रहमत उठती है। हुजूर ने फरमाया बिलाल गम क्यों करता है, तूने जहां भी अज़ान पढ़ी मुकाबे की तरफ, आज काबा तेरे कदमों में है, आज चेहरा मुझ मोहम्मद की जानिब कर ले। दुनिया को पता चल जाए कि चेहरा मुस्तफा काबे का भी काबा है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे का भी काबा देखो। जाते मुस्तफा वो असीम कायनात पर अल्लाह का एहसान है। मैं अज़राए मोहब्बत सादा अंदाज में ये पैगाम भी अर्ज करता हूँ, किसी की विलादत पर, किसी के मिलाद पर, या होर सादा कर लीए किसे दे जम्मण ते खुशी ही मनांदा है जिंदा जम्मण वाले नाल कोई ताल्लुक होवे। तुहाडी सुभान अल्लाह ते भी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा दिल करता है कि सारियां देगा वापस हटा दिए तो 2 घंटे होर तकरीर सुनाइए। असले च अफसल भाई का प्यार इन्ना है कि ये मैनियों भी दस चुके होंदे ने ते उस लंगर हुजूर दा फिर एक बरकत है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि जितना आप सुस्ती का इजहार करेंगे मेरी गुफ्तगू उतनी लंबी होती चली जाएगी। एक बार सारे मिल के आंखों पता चले लंगर दा शौकीन केड़ा केड़ा है। माशाअल्लाह सारे ही तकरीर सुनने वाले ने, अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज करूं कि हुजूर की जात वो जात है, किसे दे जम्मन थे किबला खुश वही हुंदा जे जिंदा जम्मन वाले नाल कोई ताल्लुक होवे। हुजूर के मिलाद की खुशियां वही मनाते हैं जिनका मदीने वाले से ताल्लुक है। हम इसलिए जब कुरान पढ़ते ना तो अल्लाह ने जब एहसान फरमाया ना तो गैरों से बात नहीं की, बस इतना कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, उन पर एहसान है जिनके दिलों में मेरा महबूब बसता है। ये एहसान उन्हीं पर है जिनके दिलों में मेरा महबूब बसता है। यारो नाश करो, दौलत बड़ी प्यारी है, किसी को दी जा सकती है, जायदाद बड़ी प्यारी है, किसी को दी जा सकती है, पर अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता। जश्न ईद मिलादुन नबी इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमा दिया है। आशिकों ने इस मफहूम को जब बयान किया तो फरमाते हैं कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। और दोनों आदम की देकर हमें नेमतें पूछता है बता और क्या चाहिए। जिसे हुजूर मिल जाए, मेरे आका तशरीफ लेके आए तो एक खुश नसीब मां जिसकी गोद में 2 साल तक मेरे हुजूर खेलते रहे, नाम हजरत हलीमा है। बहुत लंबी हयाती और बड़ा मोहब्बत का प्यार का रिश्ता। मैं आपको सीरत नबी के पैगाम की जानिब लेके जा रहा हूं। खुश नसीब औरत जिसकी झोंपड़ी को अर्शी भी झुक के सलाम करते थे कि हलीमा तेरे मुकद्दर पर कुर्बान जाए, नबियों का सरदार आज तेरी झोली में डाल दिया गया है।
ज़हन में सवाल पैदा होता है कि या अल्लाह तेरा महबूब है, मक्के के किसी सरदार के घर बचपन गुजरता, नौकर चाकर खिदमत गुजार आगे पीछे होते, पता चलता कि अल्लाह का महबूब किसी घर में पल रहा है। ये क्या हुआ कि इतनी बड़ी हस्ती उसकी झोली में डाल दी गई जिसके अपने बच्चे भी भूखे हैं। फरमाया लोगों यही तो तुम्हें समझाना है कि किसी सरदार के घर मेरे नबी का बचपन गुजरता, फिर मक्का की गली में हुजूर दावत हक देते, वो कल को उठ के कह सकता था नौज़ बिल्लाह कि हमारे ही घर में पलते रहे हो, आज हमारे ही निजाम के खिलाफ उठ के खड़े हो गए हो। और मैं मेरे हबीब इसलिए तुझे किसी सरदार के घर नहीं रखा, तुझे वहां भेजा जिसके अपने बच्चे भी भूखे हो, ताकि दुनिया को पता चले मेरे नबी को किसी ने नहीं पाला, मोहम्मद के सदके कायनात पल रही है। वो खुश नसीब मां पुत्र जेहो जे भी होण ना जी, जदों लाड़े बड़े होण ना सोने बड़े लगते, जैसा भी बैठा हो उसका रंग जैसा हो, उसके चेहरे का हुस्न और उसकी मोहब्बत और उसका प्यार जैसा भी हो, जब वो दूल्हा बना होता है ना उस वक्त वो बड़ा प्यारा लगता है। मेरा और आपका बेटा दूल्हा बना, मां सदके बारी जाए, सोच कर बताइए जब मेरे हुजूर दूल्हा बने होंगे तो मेरे आका कितने प्यारे लग रहे होंगे। दुल्हा नबियों का सरदार है और दुल्हन सैयदा खदीजतुल कुबरा है, और मिलने के लिए अम्मा हलीमा तशरीफ ले। नौजवानों और आका के प्यारे गुलामों, अगर हम अपने नबी की सीरत का ये नूर अपनी तबीयतों में और शरीयत मुहम्मदिया का ये रंग अपने घरों पे नाफिज कर लें तो यकीन जानिए ये जितनी भी नफरतें हैं रिश्तों की, ये मोहब्बतों में बदल जाए अगर हमें इल्म हो कि रिश्तों को मेरे हुजूर ने निभाया कैसे है। हजरत हलीमा सादिया चल के तशरीफ लाती हैं। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा खुश नसीब औरत है जिसे तिजारत के जरिए मुस्तफा मिल गए। लोग तिजारत करते हैं तो नफा मिलता है। दो हस्तियां हैं जिन्हें तिजारत करते करते मुस्तफा मिल गए। एक का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है और दूसरा नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा का है। बड़ी खिदमत की मेरे हुजूर की और मेरे नबी बड़े खुश थे। वक्त आखिर वक्त विसाल सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को मेरे हुजूर की जानिब भेजा। फरमाया बेटी फातिमा अपने अब्बा हुजूर से कह दीजिए कि लगता है कि मेरी मौत का वक्त आ गया है। हुजूर से कह दे मेरी बेटी कि ये जो चादर मेरे नबी के मुकद्दस बदन पे है ना, अगर मैं मर जाऊं तो ये चादर मुझे बतौर कफन दे देना, मैं समझूंगी लजपाल ने उम्र भर की वफाओं का सिला दे दिया। जब ये पैगाम सैयदा खदीजतुल कुबरा का हजरत फातिमा लेके बेटी हुजूर की जानिब गई ना, तो मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा तेरी माँ ने तो बदन पे पहना हुआ सिर्फ कपड़ा मांगा है, अगर आज खदीजतुल कुबरा कहती तो मैं अपने बदन की चमड़ी उतार के भी उसे दे देता तो उसकी वफाओं का हक फिर भी अदा ना होता। मेरे पाक हुजूर उम्र भर उन्हें याद फरमाते रहे। जब कभी घर के अंदर खुशियों का समा होता, कोई जानवर सिवा किया जाता, मेरे नबी फरमाते अरसिलूहु इला सदाइके खदीजा, ऐ मेरे सहाबा वो फुला जगह खदीजतुल कुबरा की एक सहेली रहती है, ये तोहफा उसे देकर आओ, उसकी सहेली खुश हो जाएगी तो खदीजतुल कुबरा की रूह भी राजी हो जाएगी। सैयदा खदीजतुल कुबरा यानी यूं कह लीजिए एक बहू के पास आज पहली बार अम्मा हलीमा तशरीफ ला रही। सादा सा लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि रिश्तों के तकद्दुस की कोई झलक हमारी तबीयत में बैठ जाए। हजरत हलीमा तशरीफ लेके आई तो मलिकातुल अरब, मलिका अरब, सारे मक्का वालों की दौलत एक जानिब और सैयदा खदीजा अकेली इतनी दौलतमंद थी कि उनकी दौलत एक तरफ। इतनी रईस जाती हजरत खदीजा
अम्मा हलीमा को गरीब औरत है बज़ाहिर, लेकिन निस्बत मुस्तफ़ा ने उसे इज्जत बड़ी दे दी। आपने चादर बिछाई, सिरहांदी वाली जानब बिठाया और बिठा के कहा, अम्मा जी मेरी ख्वाहिश बड़ी थी, कभी मैं भी वो चेहरा उस माँ का मुखड़ा देखूं जिसकी गोद में 2 साल तक मेरे हुजूर का बचपन गुजरा है। गुफ्तगू होती रही, जाते हुए हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, माँ जी आप पहली बार अपनी बहू से मिलने आई हैं, खाली हाथ वापस जाती अच्छी नहीं लगती। माँ तू ठहर, मैं कुछ तोहफा तुझे अपने जानिब से पेश करना चाहती हूँ। 40 शातन व बईरा, 40 बकरियां, 1 ऊंट। पहली मुलाकात जब हजरत हलीमा से सैयदा खदीजतुल कुबरा की होती है तो एक बहू हजरत हलीमा को 40 बकरियों और 1 ऊंट का तोहफा पेश करके अर्ज कर रही है कि अम्मा आते रहना और दुआ करते रहना तेरे मोहम्मद का बेड़ा बसता रहे, हुजूर की नगरी बसती रहे। और अम्मा जब तू मुझसे राजी होती है ना, मैं इतनी खुश होती हूँ, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो मेरे हुजूर बड़े राजी होते हैं। मकसद जिंदगी एक था, आखिरी पैगाम सीरत नबी का और इख्तिताम की जानिब गुफ्तगू लाएंगे। वो सीरत का पैगाम भी हजरत हलीमा के आंगन से है। नाम हजरत शीमा है, वो खुश नसीब बहन जो बचपन में मेरे नबी को लोरियां देती है। एक वैराने में हुजूर को लोरी दी गई और मोहब्बत के जुमले बोले गए। एक वैराने जहां आज भी कोई इंसानी आबादी उस अंदाज में तरक्याती काम कुछ भी नहीं, वही पुरानी निशानी है, वही पुरानी मोहब्बत के रंग आज भी हजरत हलीमा के इलाके में है, पहली निशानियों के साथ जो निशानियां मेरे हुजूर के दौर में। हजरत शीमा ने मोहब्बत भरे जुमले बैरानों में कहे थे, अल्लाह ने मिटने नहीं दिए वो लफ्ज, और आज उम्मत तक वो लफ्ज पे ऐन ही मौजूद है। बल्कि यहाँ पे मदीना तो रसूल किताब के अंदर बाबा जी मंजूर अहमद शाह साहब जामिया फरीदिया साहिबाल वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा कि हुजूर के रोज़ा अनवर पे जो कबूतर है, निस्बत की बात आप फरमाते हैं, जितने भी कबूतर रोज़ा अनवर पे हैं ये सारे उसकी नस्ल से हैं कि हिजरत की शब मकड़ी ने जाला बुना था गारे शौर के बाहर और एक कबूतरी ने अंडे दे दिए। चंद लम्हे उसने वफा की थी मेरे हुजूर से, अल्लाह ने इज्जत ये अता फरमाई कि उसी की नस्ल आज मेरे नबी के रोज़े पर मौजूद है, उन्हीं की नस्ल जारी है। और याद सऊद जब वहां पे सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी करके इन्होंने जब वहां पे हरमैन शरीफैन पर कब्जा किया तो ये निस्बतों से इन्हें बड़ी जलन होती है। इन्होंने कहा ये कबूतर हैं, ना दाना डालिएगा ना पानी डालना है, भूखे प्यासे मरते हुए तंग आके खुद ब खुद मदीना छोड़ जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो परिंदे हैं तो क्या हुआ, ये तो जानते हैं ना कि मर तो सकते हैं पर मदीना नहीं छोड़ सकते। वो भूखे मरते रहे, नीचे गिरते। बल्कि यहाँ पे फिर सब किबला ने एक और मोहब्बत की बात लिखी। वो कहते हैं वैसे तो अदब ये है कि परिंदों के अगर वॉल भी आते हैं और जब वो रोज़ा अनवर में गुंबद खजरा पे आते हैं तो ऊपर से नहीं गुजरते, साइड से होकर गुजरते, फिर कतार बना लेते हैं, अदब करते हैं रोज़ा अनवर का। लेकिन आप कहते हैं कि मैंने अपनी नजरों से देखा कुछ कबूतर गुंबद खजरा से अपना बदन जिस्म लगा के भी बाज़ बैठे होते। कहते मैंने सोचा कि शायद इन्हें अदब नहीं है हुजूर के रोज़ा अनवर का, गुंबद खजरा का। कहते फिर तहकीक की तो पता चला उन कबूतरों की नस्ल में से जब कोई बीमार हो जाता है वो उड़ के कहीं नहीं जाता, वो उड़ता है और गुंबद खजरा से अपना जिस्म लगा लेता है। अल्लाह उस बीमार कबूतर को शिफा अता फरमा देता है। हुजूर की बारगाह से जिन्हें निस्बत हो जाए
उन्होंने कहा दाना नहीं डालना, पानी नहीं डालना, मर जाएंगे, मदीना छोड़ जाएंगे। वो गिरते रहे, मरते रहे, पर शहर ना छोड़ा। हमारे लिए पैगाम इसके अंदर ये है कि अगर एक परिंदा चंद लम्हों के लिए नबी का वफादार बने, मेरे नबी उसे अपनी चौखट से जुदा भी नहीं करते, पहला करम। दूसरा करम, हुजूर उसकी नस्ल मिटने नहीं। यारो, एक परिंदा मेरे नबी से वफा करे तो हुजूर रोजे से जुदा नहीं होने देते, उसकी नस्ल को नहीं मिटने देते। अगर हुजूर का उम्मती वफादार बन जाए तो हुजूर उसकी नस्लों को कैसे मिटने दे सकते? या रसूल, इसी मकाम पर वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, इस आयत के तहत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वो कहते हैं वैसे तो बड़ी खुशनसीबी है कि मौत मदीने में आ जाए, ये बड़ी खुशनसीबी है, दफन होने के लिए जन्नतुल बकी मिल जाए। लेकिन वो कहते हैं कि कई आशिक ऐसे हैं जो हुजूर से इश्क बेइंतहा करते हैं, लेकिन दफन होना मदीने में नसीब नहीं होता। उनका क्या मकाम है? आपने लिखा कि जहां कहीं भी, मैंने अर्ज किया ना कि उस नस्ल को भी हुजूर अपनी बारगाह से दूर नहीं होने देते। आपने लिखा कि कोई आशिक दुनिया के जिस खित्ते पे मर्जी रहता है, प्यार करने वाला हो मेरे हुजूर से। दफन दुनिया के जिस खित्ते में होगा, कयामत के दिन उठेगा तो जन्नतुल बकी मदीना तैयबा से उठाया जाएगा, ये इज्जत मिलती है। हजरत शीमा ने बैराने में कुछ जुमले बोले और वो मोहब्बत भरे जुमले सीरत निगारों ने महफूज किए। अर्ज करती हैं, रब्बना अब के लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफियन हमरदा। कहती हैं, या अल्लाह, लोरी दे रही है, या अल्लाह मेरे हुजूर को बाकी रख, मैं नजरों से देखूं कि बचपन में मेरे हुजूर इतने प्यारे हैं, जवानी की उम्र में कितने प्यारे हैं। ये बड़े मोहब्बत वाले रिश्ते होते हैं बहनों के। फिर अर्ज करती, सुम्मा अराहु सय्यदन मुसव्वदा, या अल्लाह जवानियां भी देना और मेरे नबी को सरदारियां भी अता। व अकबिल आदी है मान मल हुस्सदा, जो अदावत करे, हसद करे, उसे मिटा देना। वह आती है इज़्ज़न यदुम अबदा, मेरे हुजूर को इतनी इज्जतें देना, मेरे मौला तेरी कायनात मिट भी जाए ना, मेरे नबी की इज्जतों में कमी ना है। बचपन में ये अल्फाज लोरी के, वक्त गुजरता गया, मक्का फतह हुआ, वापसी पर ग़ज़वा हुनैन पेश आता है। ये कम से कम 58 साल बाद हजरत शीमा से मेरे नबी की मुलाकात ग़ज़वा हुनैन के मौका पर हो रही। 58 साल गुजर गए, कोई मुलाकात नहीं। 58 साल के बाद जिस कबीले से ये जंग हुई, ग़ज़वा हुआ, उस कबीले में हजरत शीमा की शादी हो चुकी। कैदियों की सफ़ों में आखिर में खड़ी है और दर्द भरे लहजे में पूछ रही है, मेरे कबीले वालों मुझे बताओ तो सही, कैदी बनाया किसने? उन्होंने कहा, जी नाम तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, वही जो आमिना बीबी के बेटे हैं? कहा, जी बिल्कुल वही हुजूर है। कहा, सुबहान अल्लाह, मैं तो लोरियां दिया करती थी, पीछे हटो, मैं देखना चाहती हूँ जो कुछ लोरियों में मांगा था वो किस तरह पूरा होता हुआ मेरी नजरों के सामने आ रहा है। हजरत शीमा सफों से गुजरती हुई खेमे के बाहर आती तो एक सहाबी रसूल रोकते हैं। कहा, बीबी तू कौन है जो बेतकल्लुफ हो के आगे बढ़ती जा रही है? हजरत शीमा ने बड़े नाज के साथ कहा, मैं बताऊं मैं कौन हूं या खेमे में बैठा तुम्हारा नबी बताए कि आज कौन सा रिश्ता मुस्तफा की दहलीज़े करम पे आया हुआ है। सहाबी रसूल की तलवार पीछे हटती, हजरत शीमा आगे बढ़ती है, देखे जा रही है मेरे हुजूर को, देखे ही जा रही है। अज़राहे मोहब्बत मेरे आका ने फरमाया, बीबी खैर है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बहन, मैं तो तेरी लोरी के अल्फाज नहीं भूला, मैं तुझे कैसे भुला सकता। उसी लम्हे मेरे हुजूर ने अपने
मुबारक कंधों से चादर उतार के हजरत शीमा के कदमों में बिछाई। मैं हुजूर के घर का नक्शा नहीं बता रहा, मैदान जंग की बात बता रहा हूँ। अपनी बहन के कदमों में चादर बिछा के मेरे हुजूर कहते हैं, बहन शीमा ये चादर बिछाई है, इस पे कदम रख। वो अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मैं तो आपके दुश्मनों के साथ मिल के आई हूँ, शर्मिंदा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ये ना देख आई किन के साथ है, ये देख खड़ी किस मोहम्मद की बारगाह में है। हजरत शीमा के लिए चादर बिछा के मेरे नबी ने हमें पैगाम दिया कि मेरा उम्मती, कल तेरी बहन अगर तेरे किसी दुश्मन के साथ मिलकर भी तेरे दरवाजे पे आ जाए, उसको इज्जत देना। मिलाद वाला रसूल तुमसे राजी हो जाए, उसको धक्के देकर ना निकालना। जब तक माँ बाप जिंदा हो फिर और बात होती है, वो दुनिया से चले जाए ना तो बहनें उड़ीक और इंतजार रखती हैं कि ईद का दिन है, बाप ईदी भेजा करता था, पता नहीं आज भाई भेजेगा कि नहीं भेजेगा। बहनें करोड़पति भी हो जाए ना, करोड़पति भी हो जाए, उन्हें वो ईदी बड़ी अच्छी लगती है जो माँ बाप के बाद उनके भाई उन्हें देकर आते हैं। उन्हें वो तोहफे बड़े अच्छे लगते हैं, वो सबको बताती, देखो ना ये तोहफा मेरे भाई ने मेरे लिए भेजा, ये मेरे बड़े भाई ने भेजा, ये मेरे छोटे भाई ने भेजा है। मोहब्बतों का ये उन्वान अपने ज़हन में जरूर रखिएगा। मेरे नबी ने फरमाया, बहन शीमा मुद्दतों बाद मिली है, कुछ मांग तो सही मुझसे। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मैदान जंग में कोई बहन किसी भाई से क्या मांग सकती। मेरे नबी ने फरमाया, आज जो भी मांगोगे तुम्हें अता कर दिया जाएगा। उन्होंने अर्ज की, आका कुछ देना है ना, तो जितने कैदी मेरे कबीले के ने बिला मुआवजा आजाद फरमा दिया जाए। हुजूर ने सहाबा से मशवरा किया कि मेरे गुलामों बताओ इस बहन के साथ क्या हुस्ने सुलूक करो। मेरे नबी के सारे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह हजरत शीमा को इतना दीजिए कि सुबह कयामत तक कोई बहन किसी भाई के दरवाजे से खाली ना जाए। जश्न ईद मिलादुन नबी की इस पुरकैफ महफिल में आने वाले मेरे आका के गुलामों, जिंदगी के अंदर कोशिश कीजिएगा कि अपने रिश्तों की कदर कीजिए। अगर रिश्तों को तोड़कर आप तहज्जुद गुजार भी बन जाए तो अल्लाह की नजर में महबूब कभी नहीं। आखिरी बात, मेरे गंज शकर सरकार का एक पैगाम है, और वो पैगाम निस्बत वाले लोगों के लिए है। आपके एक बड़े लाडले मुरीद थे हजरत जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, आलिम, सैयद, आलिम, खतीब, अदब वाला। आप फरमाते हैं कि तरबियत इत्थे तो बंदा किसी इलाके का छोटा जिहा मौलवी होवे उन्होंने सामना बड़ा औखा हो। इत्थे एक होर गल भी मैं अर्ज करा, बुजुर्गां लिखिया, वो कहते हैं कि अगर विलायत छुपानी होवे तो मौलवी बन जाओ, विलायत छुपानी होवे मौलवी बन जाओ। उन्हें आख्या जी वो किवें? उन्हें आख्या सारी जिंदगी बंदे आखना ये भी कोई वली है तो मौलवी, ते वो शर्तां पीर च लभदे ने कि पीर कैसा होना चाहिए जो पाबंदे शरा हो। सारी खसूसियात अगर मस्जिद के इमाम में वो पाई जाए जो एक मुर्शिद कामिल में ढूंढते हैं, कहते नहीं ये मौलवी है, एक में पीर हो सकता। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत जमालुद्दीन हाशमी आलिम, खतीब, मुर्शिद की बारगाह में आए तो फरमाया, उस दिन ईद का दिन बाबा फरीद की खानकाह में होता था, जिस दिन खाने के लिए लंगर में डेले मुयस्सर आ जाते थे। ज़ुहद लंबिया है ना, नबियों जैसा ज़ुहद कमाया है। तरबियत की, इतनी तरबियत की कि एक दिन मिलने के लिए मुल्तान हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास जमालुद्दीन हाशमी मुरीद को लेकर गंज शकर सरकार गए। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सिलसिला सोहरवर्दिया का बहुत बड़ा नाम। उन्होंने बाबा साहब से कहा कि फरीदुद्दीन भाई ये जमालुद्दीन बड़ा
तरबियत याफ्ता तेरा मुरीद है, ये मुझे दे। मैं देखता हूँ अक्सर ख्वाजा साहब जब तशरीफ लाया करते थे और आज किबला दीवान साहब तशरीफ लेकर आए हैं, अदब वाले यही लोग होते हैं। ख्वाजा साहब भी हाजी अल्लाह दिता साहब को अपने पास बिठाने का बारहा इसरार करते थे, पर ये कदमों में बैठते थे। नौकर मालका दे बराबर बहंदे चंगे नहीं। यही अदब है, ये तरीकत है। और सारे भाइयों को मैं देखता हूँ कि सामने मजमे में बैठे होते हैं। तरीकत सिखाती ही अदब है। जिस दीन के अंदर भी अदब ना आए, उस दीन का नूर भी बंदे के वजूद से अल्लाह छीन लेता है। दीन का रंग भी वही कबूल है जिस दीन में शरीयत का रंग भी हो और अदब का रंग भी हो। और सूफिया ने अदब सिखाया है। बाबा साहब ने बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को कहा कि ये जमालुद्दीन, जमाल कहते हैं हुस्न को, खूबसूरती को। आपने फरमाया अपना जमाल भी भला कोई किसी को देता है। ये रिश्ते नाजुक बड़े होते हैं। मुर्शिद को बुला लेना बड़ी बात है, पर अदब और प्रोटोकॉल का ख्याल रखना ये उससे अगला मरन है। बाबा साहब मिलने के लिए गए जमालुद्दीन हांसवी को, हांसी इंडिया के अंदर, और उन्होंने कह दिया कि बाबा जी मेरा दिल करता है मैं मुल्तान चला जावा जे तुसी इजाजत दो थे। गंज शकर सरकार ने फरमाया जमालुद्दीन हम तेरे पास और तू मुल्तान जाने की सोच रहा है। बस इतनी सी बात के ऊपर गंज शकर सरकार नाराज हो के पाकपतन आ गए। और जमालुद्दीन हांसवी कहते हैं मैं हांसी से निकला मुल्तान की जानिब, लेकिन कहते हैं कि सारा इल्म, सारी रूहानियत, सारी नूरानियत मुझसे छिन गई। मैं बेबुकत और बेनूर होके फिर रहा था। बाबा जिससे मुर्शिद फरीद रूठ जाए उसके पल्ले बचता ही क्या है। आज सब 3 साल तक जमालुद्दीन हांसवी पाकपतन के सरहद से अंदर नहीं गए, राह गुजर पे बैठ गए जो पाकपतन शरीफ जाता था रास्ता। हर वापस आने वाले को बिठा के कहते तो कहां से आया है? वो कहता पाकपतन शरीफ से आया हूं। सामने हाथ बांध के कहते मेरा पीर फरीद तूने देखा है, मेरा मुर्शिद देखा है? अगर वो कहता जी हां देखा है तो उसे सामने बिठाते, उसे कहते मुझे वो आंखें ही दिखा दे जिन आंखों ने मेरे पीर फरीद का जलवा किया है। 3 साल के बाद दिल्ली का ताजिर गंज शकर सरकार से मिलने आया, खिदमत करते हुए पांव दबा रहा था और बाबा साहब से कहा हुजूर मैंने एक अर्ज करनी। आपने फरमाया ये पीर मुरीद का ताल्लुक है। आपने फरमाया तो जमालुद्दीन की सिफारिश करना चाहता है? जी हुजूर माफ कर दीजिए उसे। आपने फरमाया जाओ बुला के ले। 3 साल के बाद माफी मिली। जमालुद्दीन हांसवी आए तो ना वो रंग, ना वो रूप, ना वो हुस्न, ना वो रूहानियत। सामने बिठाया बाबा फरीद ने जमालुद्दीन हांसवी को, देखा उसे और बात अपने आप से की। कहने लगे फरीदुद्दीन अपने जमाल का भला कोई ऐसा भी हाल करता है? अपने जमाल का भला कोई ऐसा भी हाल करता है? फिर उसे उठाया और जमालुद्दीन हांसवी से गंज शकर सरकार ने फरमाया मांग क्या मांगता है? पता है क्या मांगा था जमालुद्दीन हांसवी ने? तशरीह नहीं वक्त में गुंजाइश है। जमालुद्दीन हांसवी ने इतना कहा कि हजरत ना इल्म, ना दौलत, ना इज्जत, ना शोहरत, एक ही आरज़ू है कि जब तक सांसों की डोरी चलती रहे बस इतनी दुआ दे दें कि मेरा मुर्शिद फरीद मुझसे राजी रहे, मेरा पीर फरीद मुझसे राजी रहे। गंज शकर सरकार ने सीने से लगा के कहा जमालुद्दीन हम तुझसे राजी हैं। कोशिश कीजिए जहां निस्बतें हों, निस्बतों का ख्याल और लिहाज जरूर रखिएगा। दिल में ख्याल भी गलत आ जाए तो फैज़ के सिलसिले रुक जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये खूबसूरत महफिल, अकीदतों का मरकज़
اور محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے. وما علینا الا البلاغ.